सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। मिलता चल तू सबसे मीठी मुस्कान के संग, भरता चल तू सब में प्यारा सा एक उमंग। लगा दे तू सबको आज हिम्मत के पर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। हर दिल को तू जोड़ दे प्यार से, खुदा की झलक दिखा अपने किरदार से। बना दे हर दिल को तू एक खुशियों का घर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। करके खिदमत सबकी दुआएं लेता चल, वक्त कैसा भी हो बनना है तुझको सफल। बना दे तू हंसी सबकी जिंदगी का सफर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर, भर के खुशियाँ खुद में सारी दुनिया में भर। दिन है सुंदर सा आज कुछ कर गुजर। सर आप कुछ बोल रहे तो वी कांट हियर यू। आई थिंक यू आर ऑन म्यूट। नो सॉरी, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। ओके ओके। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। Okay, so we'll start with the meditation practice only, like yesterday. Same process. This is just to make you expert in the meditation process. You should know how to do the meditation, even when you're not in this program. You should be able to do the meditation. That is the idea behind it. So step one, just sit comfortably, try to sit straight and try to keep your eyes open. Maybe you can just, if you want, you can close it also, but preferably it should be open. Step 2, we'll follow 4-7-8 rule. Inhale for 4 seconds, hold your breath for 7 seconds, and then exhale for 8 seconds. So just try to practice this.
3 times. Step 3 is for the attention. Today we'll have some different reflection. Like for 2 minutes, you just try to remind yourself about the 3 laws. First law, everything is unpredictable. Second law, change is the only constant. And third law, everything has a beginning and end. So you can just remind yourself this thought. And the fourth step is the affirmation. So affirmation can be any positive thought you want to give to yourself. So it becomes a part of you, and you should be able to experience it. Okay, thank you. So only request, please come in time. अगर आप late आ भी रहे हो ना, please don't disturb others, because if someone is doing this practice, है ना, you are disturbing the entire session. कोई अगर आ रहा है लेट, चुपचाप आके बैठ जाओ. लोगों को डिस्टर्ब नहीं करो इधर उधर कि इधर हो जाओ उधर हो जाओ. ऐसा कोई किसी का फिक्स सीट नहीं है ना. ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन. सबका अटेंशन ना उधर चले जाता है फिर. So this is the first step. Means if you are trying to sit on a meditation, if you are trying to practice meditation, that is the first rule. It should be disturbance free. That's why I am pointing it out. अगर आप इस तरह के किसी भी एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहाँ डिस्टर्बेंस हो रही है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, और इसका कोई मतलब वो 5 मिनट सिर्फ कहने को होंगे, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा. राइट. तो ट्राई टू फाइंड योर ओन स्पेस where there is no disturbance, some corner or maybe some outside, wherever, terrace, where there should be no disturbance, not even your mobile at that time, because this time is purely for you. Even it's 5 minutes, but it's just for you. Also try to fix a place for it, Anna, when you practice meditation. So it should be a fixed place, normally preferred. There are so many reasons for that. Time, place, this is all important. And silence. Silence nahi bhi hai bahar, to but under silence is the target. So yesterday we had to do this small activity. It was not activity in the session, but yes, homework kind of thing. I hope everyone has this rating.
तो मुझे शेयर कर दें, मेरे पास कुछ लोगों का तो आया है, सबका नहीं आया है. एनी इश्यूज इन दैट? कुछ समझना, कुछ डाउट किसी को? बिकॉज आ नहीं रहा, इसमें कुछ करना तो है नहीं, है ना? ईमेल, व्हाट्सएप कैसे भी कर सकते हैं, बट इट शुड बी इन योर रिकॉर्ड्स, है ना? एंड आई कैन record it also along with your other parameters. External achievements of self. External achievements. Anything. अपनी achievements या happiness के लिए, अपनी happiness के लिए अपनी achievements देखनी है. हाँ, किसी मतलब अचीवमेंट में विच यू फील इज अचीवमेंट फॉर यू, इट कुड बी एनीथिंग, है ना, विच मेक्स यू हैप्पी एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट. Do we need to consider things that we have already achieved? It's not about past, it's about present and the future, मेरे हिसाब से. But you know कि these are the things where you are dependent, and you do something about it to get to experience the happiness. So we have this box with us. Everyone has his own box. My physical world, है ना? सबके पास है? सबने ड्रॉ किया हुआ है ये? ओके. सो इसके क्या 3 लॉज हैं? कैन समवन रिपीट व्हाट आर द 3 लॉज? Nothing is nothing is unpredictable. Everything is unpredictable. Everything is unpredictable. Change is the only thing which is constant in this world, and everything has a start and an end. Okay. So we'll take the last one. Everything has a start and the end. How if I apply this to me, my life, ठीक है? So if I'm applying means I have a start and I have an end, right? यही मतलब हुआ, मेरी एक beginning है और मेरा एक end है. It could be my body, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? मेरा एक स्टार्ट है और मेरा एक एंड है. थोड़ा सा उसको एक लेवल नीचे जाके थोड़ा सा डीप जाएंगे तो क्या मैसेज है इसमें? जो शुरू होता है वो खत्म होगा ही. अपनी बात कर रहे हैं, जो नहीं है अभी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. सर मैंने एक और सोचा था इसमें, जैसे एंड होना जरूरी है, मतलब किसी भी काम को स्टार्ट जो हम कर रहे हैं उसका एंड भी जरूरी है समझना. राइट. तो अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मेरा एक स्टार्ट है इस दुनिया में, इस फिजिकल वर्ल्ड में, और मेरा एक एंड है. लेट अस स्टिक टू दिस थॉट ओनली, ठीक है? इसी के ऊपर हम थोड़ा सा फर्दर जाएंगे. सो व्हाट इज द मैसेज इन दिस? दिस इज द ट्रूथ. मेरा बर्थ है और मेरी डेथ निश्चित है. राइट. सो आई एम हियर फॉर सम टाइम. आई एम हियर फॉर सम टाइम, राइट? दिस इज द मैसेज कि आई एम नॉट परमानेंट हियर, आई एम हियर फॉर सम टाइम, राइट? ऑल एग्री टू दिस? सो अगर मैं यहाँ पे कुछ समय के लिए हूँ, जो इंसान कुछ समय के लिए होता है उसको क्या कहा जाता है? Guest. यात्री, गेस्ट, ट्रैवलर. राइट. सो वी ऑल एक्सेप्ट दिस कि वी आर गेस्ट हियर, वी आर ट्रैवलर्स हियर, राइट? तो अगर सपोज कोई टूरिस्ट प्लेस ले लो या कोई रोपड़ की वो ले लेते हैं, जो शिमला ले लो. हैं, शिमला ले लो. तो शिमला अगर सपोज मैं शिमला जाऊं, ठीक है, या शिमला को यहीं पे विजुलाइज करते हैं, तो कैन आई फिगर आउट इन फ्यू मिनट्स यहाँ पे कौन ट्रैवलर है और कहाँ यहाँ कौन यहाँ का रेजिडेंट है, विदाउट आस्किंग देम. जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो
गेस्ट है, ये ट्रैवलर है, बहुत ज्यादा इधर उधर देख रहा है। बहुत ज़्यादा, और जो थोड़ा सर वैसे भी जो ट्रैवलर होता है वो मोबाइल लेके मैप में भी खोजता है कि वो मोबाइल देख के चलता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है कहाँ नहीं, कौन हो सकता है उस समय तो पार्क में खेल रहा हो तो हो सकता है मैं अपना, हाँ, तो दैट इज वन, या वन वो दे कीप ऑन एक्सप्लोरिंग सर कि और कहाँ same जा time. सकते हैं, थोड़ा सा एक्टिव माइंड से देखेगा इधर उधर सारा कुछ। ट्रैवलर का उसमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है वो जानने की, एरिया की क्यूरियोसिटी क्या है क्या नहीं। तो ट्रैवलर का जो उस समय माइंडसेट है ना, वी कैन फिगर आउट, है ना। फर्स्ट थिंग इज वी ऑल एग्री कि वी कैन फिगर आउट हु इज द टूरिस्ट और द ट्रैवलर एंड हु इज द रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। बिकॉज बिहेवियर डिफरेंट होता है, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, उनके फेसेस डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले तो चेहरे से ही पता लगता है, जो ट्रैवलर होगा है ना वो इन्जॉय कर रहा होगा, उसको वो पता लग जाता है। वो जो रेजिडेंट होंगे वो सीरियस ही दिखते हैं नॉर्मली, है ना। लैंग्वेज भी डिफरेंट होगा। लैंग्वेज तो हाँ, वो तो हो गई, लैंग्वेज हो सकता है हिमाचली भी हो, बट दैट इज वन क्राइटेरिया ऑल्सो। सो if we so basic thought here is if we align something with the truth, जो कि इस दुनिया का सत्य है ना, तो हमारा जो देखने का जो नज़रिया है, हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है, नेचुरली चेंज होता है। मतलब उसके लिए हमें एफर्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम आज तक हमें यही बताया गया है कि आप एफर्ट कीजिए, बाहर की दुनिया में एफर्ट कीजिए, है ना, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, अपने बिहेवियरल चेंजेस लाइए, है ना, उसके लिए बुक्स रीडिंग कीजिए, आप बहुत कुछ कीजिए, है ना। तो वो होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, देन वी आर बैक टू आवर नॉर्मल बिहेवियर, बिकॉज वी नेवर अलाइंड आवर थिंकिंग विद द ट्रुथ। इस मॉडल का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हम अगर ट्रुथ के साथ अलाइन हो रहे हैं तो हमारे पास हमारा जो चेंज होगा वो नेचुरल होगा, एफर्टलेस होगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी ट्रुथ है उसको मैं अच्छे से अप्लाई, एक समझ लूँ कि ये ट्रुथ है, इसके अलावा कुछ सत्य है नहीं, यही सत्य है। अगर मैं नहीं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो डिस्कस, बट बेसिक मतलब साइकोलॉजी तो यही कहती है कि अगर आपने किसी बात को एक्सेप्ट कर लिया, इट गोज इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड, इट बिकम्स योर प्रोग्रामिंग, ठीक है, यही है। सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग, लाइक आई हैव ए एंट्री इन दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड आई हैव ए एग्जिट, है ना। वेरी क्लियर एंट्री होती है मेरी एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड मेरी बहुत क्लियर एग्जिट भी होती है ना। सो वी नीड टू एक्सेप्ट दिस, एंड इसी को हम कहते हैं कि गेस्ट कॉन्शियसनेस। इफ आई एम अवेयर कि आई एम गेस्ट हियर, आई एम ए ट्रैवलर हियर, राइट, लाइफ बिकम्स वेरी इजी, लाइफ बिकम्स वेरी इजी। बिकॉज जब हमने फिजिकल वर्ल्ड में देखा था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी स्लेव बनने की। जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था, कैन वी बी फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, कैन वी बिकम 100% फ्री, है ना, कैन वी अचीव 100% फ्रीडम। बट उसके बीच में ये आ रहा था एक्सपेक्टेशन है, तो मैं जैसे ही मैंने एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया तो मैं स्लेव बन गया, मैं बॉन्डेज में आ गया। देन आई एम नॉट फ्री until my expectation is met, fulfilled। वो जो भी है, इंसान हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, गैजेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो मेरा मास्टर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं उसको अपना कहीं ना कहीं उससे एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, है ना। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी भी नॉर्मल, एक्सपेक्टेशन का मतलब यहाँ पे है स्लेव बन जाना। अगर मैं किसी से नहीं भी रख रहा हूँ तो नॉर्मल है। हाँ, इट्स ओके इफ यू आर हैप्पी। फाइनली योर एम इज कि आई शुड नॉट लूज और गिव अवे माई हैप्पीनेस, राइट, एंड एक्सपेक्टेशन इज वन ऑफ द रूट कॉज, वन ऑफ द मेजर रूट कॉज, है ना, कि हम एक्सपेक्टेशन जैसे ही क्रिएट करते हैं तो आई लूज माई हैप्पीनेस। देयर विल बी अदर डायमेंशंस ऑल्सो ऑफ हैप्पीनेस, बट मोस्ट हम डेली लाइफ की बात करते हो, हमारा ये सबसे बड़ा एक
फैक्टर होता है जिसकी वजह से हम अपनी हैप्पीनेस को लूज करते हैं, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट डे हमने यही डिस्कस किया था कि नेचुरली वी आर हैप्पी बीइंग्स बट वी लूज अवर हैप्पीनेस। हम क्यों लूज करते हैं? बिकॉज वन ऑफ द फैक्टर इज एक्सपेक्टेशन, मेजर फैक्टर। और भी आएंगे, अब हेल्थ इशू भी हो सकता है, मेरा डाइट प्रॉब्लम भी हो सकता है जिसकी वजह से मुझे कुछ हेल्थ इशू हो जाए या कुछ ऐसा है ना, क्रॉनिक कुछ भी हो सकता है, उसकी वजह से मैं हैप्पीनेस लूज कर सकता हूँ, है ना। यहाँ मैंने माइंड में कोई एक्सपेक्टेशन या डिज़ायर क्रिएट नहीं की है, बट आई कैन लूज, कुछ एक्सीडेंटल कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी वो भी हो सकता है। सर जैसे अपन बेसलाइन के नीचे आए कभी अनहैप्पीनेस में, एंड जैसे मेरे को मेरा कि जैसे मैं अनहैप्पीनेस है तो कोई गाना सुनूंगा, एक गाना जो मैं अगर दिमाग में सुनता हूँ देन कम टू बेसलाइन, दैट इज एन एक्सेप्ट स्लेव माइंड हो गया कि सर क्या चीज रहेगा? वो तो आप अवॉइड कर रहे हो ना, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, ठीक है। आप अपने माइंड को कहीं और इंगेज कर रहे हो, मतलब सिचुएशन से भाग रहे हो, फाइट या फ्लाइट के उसमें भाग रहे हो, वो वापस आएगा ना। आपने कोई भी एक सिचुएशन को लेके आपने इसलिए बने हुए हो, एक्सपेक्टेशन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो गाना सुनने से तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी खत्म हो रही है, आप सिर्फ उस टाइम के लिए अपने आप को, अपने माइंड को कहीं और एंगेज कर रहे हैं। जैसे गाना खत्म होगा फिर वहीं आ जाओगे, जो चीज मेरे को अच्छी लगी उसी पे डिपेंडेंट हो गया, तो उसको भी हाँ वो भी नेगलेक्ट करना है या दैट इज आल्सो स्लेव कॉन्शियसनेस ना। आप फिर सॉन्ग के ऊपर डिपेंडेंट हो गया, है ना। सॉन्ग ने आपको अपना स्लेव बना लिया कि जब तक मैं चलूंगा खुश है, जब मैं बंद हो जाऊंगा तो यू आर अगेन स्लेव, है ना। सो दिस ऑल एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, है ना। हम ये कह रहे हैं कि वी हैव टू लिसन टू सॉन्ग्स, वी हैव टू डू एवरीथिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड, हमें कुछ भी छोड़ना नहीं होता है, वो तो चल रहा है जैसा भी चल रहा है, बट मेरे को अपनी एक्सपेक्टेशन में ये नहीं रखना है कि ये चीज़ मुझे मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल होगा तो आई विल बी हैप्पी। यू कैन बी स्टिल हैप्पी हैविंग द एक्सपेक्टेशंस, बट नहीं फुलफिल होगा तो दैट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया, है ना, कि वो आपने अपनी हैप्पीनेस लूज कर दिया, वो नहीं होना चाहिए, राइट। सर लेकिन अगर नेग्लेक्ट करने की जगह कई बार ऐसा होता है ना कि सम म्यूजिक इज वेरी इन्फ्लुएंसिंग, वो एक इफेक्ट ऐसा रखता है कि उसके साथ साथ काम की स्पीड बढ़ जाती है कई बार। लाइक मैं जनरली जब भी पढ़ाई करता हूँ तो मैं हांस जिमर की प्लेलिस्ट लगा देता हूँ म्यूजिक की, नो सॉन्ग, एंड केवल जो उसका पियानो म्यूजिक का एंड ऑल जो होता है वो उससे काफी इन्फ्लुएंस आता है कि मेरी स्पीड में नोटिस किया अंतर आ जाता है। तो उससे हैप्पीनेस का क्या लेना देना? सर बट मतलब लाइक अगर म्यूजिक का उस तरह से इफेक्ट है तो क्या वो भी स्लेव माइंडसेट में है कहीं ना कहीं? नहीं, यहाँ पे देखिए अभी हम अफेक्टिवनेस की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो अभी हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अफेक्टिवनेस की जब बात होगी तो देन वी कैन सी कि भैया अफेक्टिवनेस इंप्रूव करने के लिए क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होना चाहिए, है ना। अगर सस्टेनेबल है तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। तो लोग कैरी करते हैं ना बहुत कुछ अपने साथ, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट। पानी की बोतल हो सकती है, आपका म्यूजिक सिस्टम हो सकता है, मोबाइल में बहुत कुछ होता है, इसीलिए तो मोबाइल जैसे ही छूटता है तो सांस फूल जाता है, एकदम से रुक जाता है एकदम, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत है उसके ऊपर। कम्युनिकेशन के लिए डिपेंडेंसी है, सॉन्ग के लिए डिपेंडेंसी है, आपके इंस्टा की रील्स के लिए डिपेंडेंसी है, बहुत कुछ डोपामिन मिलता है उसमें ना। सो नहीं मिला तो देन परेशान हो जाते हैं, है ना। सो डिपेंडेंसी तो है, दैट इज स्लेव कॉन्शियसनेस। अगर आपको कहीं बंद कमरे में बंद कर दिया जाए, कहीं छोड़ दिया जाए, इफ यू आर स्टिल हैप्पी देन yeah, that is your internal happiness, na, then you're not dependent on anything, but that is your natural state also. That is what we are trying to achieve and experience. सर तो एक थोड़ा इसी का ही फर्दर वर्जन है कि कई लोग जैसे कह लो कि रिलीजियस हैं, वो राम 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 कर रहे हैं एग्जाम्पल, तो क्या ये भी एक स्लेव माइंडसेट है कि उनको उनसे मोटिवेशन मिल रही है? मुझे पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं, आई डू नॉट नो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फिर क्या ये भी फेथ भी हो सकता है, मे नॉट बी एंटायरली। अगर स्लेव और मास्टर की डेफिनेशन में बात करें तो क्या ये भी स्लेव माइंडसेट ही है?
नहीं क्योंकि वो भी उसको वही कर रहा है ना, जो म्यूजिक कर रहा है उसको वो कर रहा है। सी इफ मेरे हिसाब से इफ इट इज इन योर कंट्रोल, एनीथिंग विच इज इन योर कंट्रोल, है ना, दैट इज ओके. Anything which is not in your control and you're dependent on it, then it is not okay. Then you're a slave. नहीं, किसी को एकदम से डर लगा या कुछ सिचुएशन आ गई, एकदम से वो शुरू हो जाते हैं कि भाई, So that is in your control. राम राम बोलना is in your control. अगर उसको किसी को वो थॉट ला के या वो बोल के, क्योंकि वो तो मेरे कंट्रोल में है, so I am not dependent on anything except my own mind. तो सर म्यूजिक सुन के भी तो लेट अस सपोज कोई उस टाइम पे म्यूजिक सुन रहा है, उसको वो भी सूट कर रहा है, कोई राम राम बोल रहा है वो भी सूट कर रहा है, एग्जांपल ले रहा हूँ। नहीं, बट अंतर है ना दोनों में. एक तो एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, एक अपने खुद के थॉट के ऊपर डिपेंडेंट है. नहीं, बट अगर वो भी म्यूजिक लगा लेता है उसी चीज का, नहीं तो देन वही, अगर म्यूजिक से वो उसका मूड कंट्रोल कर रहा है तो देन इट इज डिपेंडेंसी. अगर वही है कि अगर उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाए एंड स्टिल वो राम राम करके अपने मूड को कंट्रोल कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है, तो दैट इज फाइन, दैट इज नॉट स्लेवरी. जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, दैट इज फाइन, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. हम अपने रिसोर्सेज को ही तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, कि मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक, अनटिल कि उसकी वॉइस चली जाए या उसका मतलब, वो एक अलग बात है कि राम राम बोलना ही है, सोच के नहीं हो रहा, बोलने से अगर होता है तो उसकी वॉइस जवाब दे जाए किसी दिन, तो देन वो उसका इसलिए हो गया उस दिन, है ना. सो जब स्लेव कॉन्शियस गेस्ट कॉन्शियसनेस की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब प्योरली यही है कि आई एम अवेयर दैट आई एम टेम्परेली हेयर, फर्स्ट थिंग, एंड नथिंग इज माइन हियर. हम आप किसी के घर में गेस्ट बन के जाएं, चलो वो तो ट्रैवलर की बात थी, है ना, गेस्ट बन के जाएं, ठीक है, आपको पता है कि आपकी एक एंट्री है उस घर में और आपका एक फिक्स टाइम के लिए आप वहाँ गए हैं, और एक क्लियर एग्जिट भी है जिसके घर जो भी आपका होस्ट है, राइट. ऐसे ही होता है. तो आप जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, हंसते मिलते हैं, बात करते हैं, कुछ चीज़ अच्छी भी लगती है ना, उसका कोई शो पीस रखा हुआ है, उसके कर्टेंस हैं, कुछ भी हो सकता है, उसका सोफ़ा हो सकता है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनका फूड हो सकता है ना, तो आपको बहुत कुछ अच्छा लग सकता है, बट आपको पता है कि दिस इज़ नॉट माइन. आप उसके साथ अटैच नहीं होते हो, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हो, यू जस्ट एन्जॉय दैट एनवायरनमेंट ऑफ बीइंग ए गेस्ट, राइट. सब कुछ है जो हमारे पास है, वो भी उनके पास भी सब कुछ है, बट हम उनके घर को बहुत इंजॉय करते हैं, है ना, बिकॉज दैट टाइम वी आर नॉट ओनिंग एनीथिंग, वी आर नॉट ट्राइंग टू ओन एनीथिंग, राइट. जितने टाइम के लिए अवेलेबल है, वी आर इंजॉइंग दैट मोमेंट, है ना. दैट इज गेस्ट कॉन्शियसनेस, एंड वी आर सो थैंकफुल फॉर दैट कि आपने चाय पिलाई, आपका ये देख के बड़ा अच्छा लगा, है ना, आपने कहाँ से खरीदा, वो सब बात करके हम आ जाते हैं. बट अगर हम उसमें फंस जाएं, सपोज फॉर ए मोमेंट, कि नहीं यार इसका ये कोई भी शो पीस हो सकता है कि यार ये तो मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं ले जाऊँ इसको, तो विल यू बी अ गुड गेस्ट, विल यू बी स्टिल एंजॉइंग द हैप्पीनेस. खुद भी परेशान होगे, उसको भी परेशान कर दोगे, है ना. ऐसे ही होता है, बिकॉज दैट इज़ वेरी अननेचुरल, है ना. बट सम हाउ बिकॉज वी आर नॉट अलाइंड विद द ट्रूथ, एंड हम भूल गए, हम उस अवेयरनेस में नहीं है कि वी आर गेस्ट हियर, सो वी आर ट्राइंग टू ओन एवरीथिंग विच इज़ नॉट माइन एक्चुअली. तो आपके फिजिकल जो आपका बॉक्स है ना, इसमें आप एक एक करके गोले बना लो कि कौन सा ऐसा है वस्तु या चीज़ जिसके ऊपर 3 लॉ अप्लाई नहीं होते हैं, और जिसको आप बोल सकते कि नहीं ये 3 लॉ अप्लाई नहीं होते, दैट इज़ प्योरली मतलब आई कैन बी डिपेंडेंट अपॉन, माई हैप्पीनेस कैन बी डिपेंडेंट अपॉन दिस थिंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड. उसके ऊपर एक सलकर मार दीजिए आप, अगर कुछ मिलता है तो दैट इज इन योर कंट्रोल, दैट इज योर्स. करके देख लो ना. तो ये तो सिर्फ सोल ही है जो इस तरह की सर अपन इसमें जो लिखा उसमें तो सबके साथ ही कुछ, जैसे सर मैंने मदर फादर
वाइफ, प्लांट्स, टीवी, इसके साथ तो सबके साथ ही सर हैप्पीनेस तो है। हाँ, तो सब पे अलाउड नहीं आएगा सर ये तो स्टार्ट एंड तो सभी का ही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आपकी हैप्पीनेस, देखो वो तो अच्छी बात है, वो तो गिफ्ट्स हैं हमारी लाइफ के, एज ए गेस्ट वो तो गिफ्ट्स हैं ना हमारे पास। मैं उसके लिए ऊपर मतलब मेरी हैप्पीनेस थोड़ी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो तो गिफ्ट है। अगर मैं हैप्पी होऊंगा तो मैं उनको कुछ दे सकता हूँ, मैं भी उनको हैप्पी कर सकता हूँ, ठीक है ना। बट क्या 3 लॉस के परे हैं वो, दे आर दे उनके ऊपर अप्लाई नहीं होते क्या ये 3 लॉस? होते हैं सर। तो देन इट्स माई चॉइस नाउ, है ना, इट्स माई चॉइस नाउ कि शुड माई हैप्पीनेस बी डिपेंडेंट ऑन माई फिजिकल वर्ल्ड या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर? दैट इज प्योरली माई चॉइस। शुड आई लिव लाइक ए गेस्ट और शुड आई लिव लाइक ए होस्ट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड वेयर आई फील कि yes, this is my relation, whatever it is, है ना। नहीं, दिस इज अगेन, ये अभी लग रहा है आपको क्योंकि आपने अभी अप्लाई नहीं किया है, अभी तो आप सोच रहे हो। आप सीधी सी बात है ना, आप गेस्ट बन के गए हो तो आपको फर्क नहीं पड़ता क्या? गेस्ट को भी तो सर सारी चीजें चाहिए जो दूसरे बंदे को चाहिए, यूज तो वो सभी कुछ कर ही रहा है, गेस्ट भी तो सब कुछ यूज कर रहा है, बस वो उसके साथ अटैच। तो यही है, देखिए दिस इज, ये एक बहुत 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 डीप प्रोग्रामिंग है, इसलिए हम एक्सपेक्टेशन करोगे तो क्या होगा, क्या होगा? तो आपको कोई मतलब एक्सपेक्टेशन कर लोगे और किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट उसके घर में होने लगोगे तो वो प्रॉब्लम होगी ना, सबको प्रॉब्लम होगी ना। सो दिस इज द डीप प्रोग्रामिंग, दिस इज द डीप थिंकिंग, है ना, कि हम इसको अगर एक बार समझ लेंगे, है ना, तो वी मे हैव ए वेरी डिफरेंट व्यू ऑफ दिस लाइफ। हमारा जो ग्लास चेंज हो जाएगा देखने का, and we will be enjoying much better, we will be much happier, because ये हमने किया नहीं है अभी तक, है ना। और इसमें कुछ करना भी नहीं है, मैं इतना बताता हूँ आप लोगों को, मैं सब बिल्कुल सिंपल कर देते हैं इसको, इसमें हमें कुछ करना भी नहीं है। अगर आप ये सोचो कि कल जाके मैं कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, मैं कुछ ऐसा करने लगूंगा गेस्ट की तरह, वो नहीं, आपको एक्सटर्नली कुछ करना ही नहीं है। द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल इज कि आपको कुछ करने की कोशिश भी नहीं करनी है, आपको फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि अपने आप को रिमाइंड कराना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका जो क्वेश्चन था कि मैं फिर तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मेरी हैप्पीनेस उनकी हैप्पीनेस के ऊपर डिपेंडेंट है। मैं बहुत सारा कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करता हूँ सो दैट आई कैन मेक अदर्स हैप्पी, माय फैमिली हैप्पी, है ना, माय बॉस इज हैप्पी, माय कोलीग्स हैप्पी। मेरी हैप्पीनेस उनके ऊपर भी डिपेंडेंट होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी मैं डिपेंडेंट हूँ, उनकी हैप्पीनेस के ऊपर भी मैं डिपेंडेंट हूँ। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स लिंक्ड, बट आपको वो सब सोचना नहीं है। We are just discussing the truth here. We are not trying to change anything in the external world or even in our behaviors. आप कॉन्शियसली कुछ कर ही नहीं पाओगे आज। ये अगर आपने इस सेशन के बाद हो सकता है आप कोशिश करो, बट वो कल वापस फिर आएगा, वापस आप अपने उसमें आ जाओगे। हम वो कर ही नहीं सकते हैं, वो हमारी कैपेसिटी में है ही नहीं कि हम कुछ भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंज कर पाएँ, इवन अपने बिहेवियर में भी चेंज कर पाएँ, सस्टेनेबल चेंज कर पाएँ। वो नहीं होगा अनटिल आपकी कॉन्शियसनेस चेंज होगी। कॉन्शियसनेस चेंज करने के लिए ही हम सिर्फ ट्रुथ पे आ रहे हैं, बिकॉज ट्रुथ इज द हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, ट्रुथ इज द सेलिब्रेशन। आप जब उस स्टेज पे होते हैं तो इट मीन्स एवरी मोमेंट इज अ सेलिब्रेशन फॉर यू। देन हम उस स्टेज पे पहुंचने की कोशिश कर, नहीं भी पहुंचेंगे बट वी आर ऑन दैट जर्नी सपोज, ठीक है ना। आज हम जिस जहां भी हैं, विल स्टार्ट रेजिंग आवर कॉन्शियसनेस, हम ऊपर उठना चालू हो रहे हैं,
जैसे जैसे हम ट्रुथ को जानते जाएंगे। तो ट्रुथ है ना, मैं उसको अगर नकारता हूं तो अभी नेक्स्ट उसी के ऊपर आने वाला है। जब हम ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है हमारे साथ? ऑल आवर प्रॉब्लम्स आर बिकॉज वी आर नॉट ऑन ट्रुथ। We know truth, but we do not accept the truth. We do not want to follow the truth. We do not want to align with the truth. That is the only problem of unhappiness. यहाँ सच बोलने वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ जो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, जो यूनिवर्स के लॉस हैं, दुनिया का नियम है, हम उसके बस जानने की बात कर रहे हैं। अवेयरनेस होगी ना तो मैं फॉलो करूंगा ना, अपने आप से होगा। जब मुझे रूल पता होगा तो मैं बार बार सोचूंगा नहीं कि मुझे ये करना है करना है करना है, वो खुद ब खुद होता है। आपको सिर्फ अब यही करना है कि आपको 2 मिनट निकाल के दिन में, भले 2 मिनट भी निकालेंगे ना, दैट इज सफिशिएंट। 2 मिनट तो हम निकाल सकते हैं ना। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारे पास बहुत टाइम होता है, हम 2 मिनट तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं एक रील को स्क्रॉल करने में, बिना कुछ एक किए भी, है ना। सो 2 मिनट में यू हैव टू जस्ट रिमाइंड योरसेल्फ 3 लॉज एंड आई एम ए गेस्ट हियर। मुश्किल है इतना सोच रहे हैं। सो दैट करेंगे फिर मुश्किल लगेगा सर अभी। नहीं, इसमें मुश्किल कुछ है ही नहीं नहीं, ना। मतलब स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा। व्हाट इज मुश्किल इन दिस? मेरे को तो थोड़ा समझाओ कि हमें 2 मिनट निकाल के सिर्फ अपने को ये याद दिलाना है कि भैया इस दुनिया के 3 नियम है और चौथा नियम हम ये बोल रहे हैं कि वी आर गेस्ट हियर। इसमें क्या मुश्किल है? लेट मी अंडरस्टैंड दिस। हाँ तो रहने तो चाहिए, पर क्या हम याद रख रहे हैं? क्या हम उस अवेयरनेस के साथ चल रहे हैं? है ना। अगर चल रहे हैं तो यू आर ऑलरेडी एट ए वेरी हायर कॉन्शियसनेस, बिकॉज ये सब बातें जो है ना हायर कॉन्शियसनेस के, दिस इज ट्रुथ। बिकॉज हम जितने जितने ट्रुथ के पास जाएंगे हमारी कॉन्शियसनेस उठती जाएगी एंड हम नेचुरली वैसे ही रहेंगे। हैप्पीनेस विल बिकम अवर नेचुरल नेचर देन। हम फिर ढूंढेंगे थोड़ी हैप्पीनेस को एक्सटर्नल वर्ल्ड में, जो कि हमें पता है कि वो 3 लॉज से अप्लाई हो ही रहे हैं। और मेरा है नहीं, सबसे बड़ी बात। मेरा हो तब भी मैं बोलूँ कुछ, तब भी चिंता करूँ। मैं ही खुद ही गेस्ट हूँ यहाँ पे, है ना। तो जस्ट 2 मिनट्स, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ज़्यादा समय नहीं अपने इसमें, सिर्फ 2 मिनट अपने को देना है, रिमाइंड कराना है। जितना ज़्यादा उतना अच्छा है, दैट इज द रूल। बट मिनिमम 2 मिनट तो दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे नेचुरली जो चेंज आने लगेगा, दिस इज व्हाट इज रिटन हेयर। वंस वी रिकॉग्नाइज दिस ट्रुथ, है ना, ऑटोमेटिकली मीन्स we'll see the changes in our personality. हम कैसे बिहेव करते हैं, है ना, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्सेस हमारे कैसे होते हैं, हम लोगों से कैसे बातें करते हैं, रिलेट करते हैं ना। एंड हमारा जो डिपेंडेंसी एक्सटर्नल वर्ल्ड के ऊपर कितना है, अभी अगर हम बोल रहे हैं कि 7, 8, 9 मेरी हैप्पीनेस उस लेवल पे डिपेंडेंट है, तो ऑटोमेटिकली वो आप इंडिपेंडेंट होते जाएंगे, आप फ्री होते जाएंगे, जस्ट बाय रिमाइंडिंग योरसेल्फ these truths, right? ये चीजें सर हमने पकड़ी होती ना, इससे हम चीजों को थोड़ा छोड़ना सीख जाएंगे। मेरे को लग रहा है कि जैसे हम ये माइंडसेट में आएंगे तो उससे हमारे जैसे मैं यहाँ के बोल रहा हूँ कि जो अपनी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस है उसको कैसे करेंगे, इसका वो लेना देना नहीं है। नहीं, सब लेना देना है, सब लेना देना है, बहुत कुछ सबका लेना। दिस मॉडल इज ऑल अबाउट योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। वो उसमें इंप्रूवमेंट आएगी, सब जगह इंप्रूवमेंट आएगी। वो ये सब बाई प्रोडक्ट्स होंगे। सर जैसे अपन प्रोफेशनल में लेते हैं, बिल्कुल सही पूछ रहे कोहली साहब सर। जैसे प्रोफेशनल है, मैं आज सोचूं यार मैं तो गेस्ट हूँ, जो चल रहा है चलने दो। तो नहीं, दे आर्ट कॉन्शियसनेस है, दिस इज आर्ट कॉन्शियसनेस। नो, जैसा चल रहा है, कैसे आपका रोल है। आप यहाँ पे आए हो, आप गेस्ट जाके किसी घर सो जाओगे? कैसी बातें कर रहे हो? यू हैव टू डू एवरीथिंग, यू हैव टू बी मोर केयरफुल व्हेन यू आर गेस्ट।
मेरी आँख न लग जाए, मैं कहीं कुछ इस तरह से ना कर दूं, है ना। मैं आया हूँ यहाँ पे 10 मिनट के लिए आया हूँ, लेट मी गिव माई बेस्ट। ऐसे ही होता है, या वहाँ पे जाके सो जाते हो किसी सर वहाँ जैसे मैं बीइंग एज ए गेस्ट, या खाना मेरे को मिल रहा है, सब कुछ मेरे को मिल रहा है, दैट इज, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। नहीं तो यहाँ आप खाने के लिए नहीं आ रहे ना, सी आप कंपनी में खाने के लिए नहीं आ रहे। इट्स नॉट सर कंपनी, मैं तुझे से एक नहीं, पहले एक पे बात करते हैं। यस अभी प्रोफेशन की बात हो रही है या खाने की बात हो रही है? सर अभी मैं प्रोफेशंस की बात कर रहा हूँ। राइट सर सपोज करें कि मैं आज एक कुछ गलत होता देख रहा हूँ, कोई सेफ्टी पॉइंट अपन लेके देख रहे हैं कि यार ये गलत हो रहा है, एंड आई थिंक लाइक दैट, यार मैं गेस्ट हूँ, मैं इसको बोलूंगा तो ये गलत है, उसका घर है तो उसका गलत हो रहा है। नहीं, नहीं, तो दैट इज एन प्रोफेशनल में everyone- गलत हो गया ना सर। नहीं, वो देखिए ना, आप कैसे गलत हो जाएगा? आप गेस्ट हैं, आपके सामने गलत कुछ अगर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सब गेस्ट ही है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, किसका परमानेंट घर तो है नहीं, है किसी का? कंपनी किसी की परमानेंट है? सबके ऊपर अप्लाई कर दिया आपने पहले ही वो रूल, यू आर ऑल्सो गेस्ट, ठीक है, वो भी गेस्ट हैं आपके सामने। सपोज आप गेस्ट, मैंने तो नहीं किया आज तक अपनी लाइफ में, मैं 53 ईयर्स का हो गया, मैं किसी के घर गया हूँ और मैंने देखा कि उसका बच्चा कुछ किसी ऐसे चीज़ से खेल रहा है जिससे उसको नुकसान हो सकता है, और मैं चुपचाप बैठा देख रहा हूँ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो बिजली के उसमें उंगली डाल रहा है और मैं चुपचाप देख रहा हूँ, यार मेरा थोड़ी बच्चा है, इसको करंट लग गया तो इसका जाएगा, ऐसा करता क्या? नहीं सर, बंदा उसको भी नहीं बोलता, वो खुद ही भागता है उसको ठीक से। ये नहीं कहते। तो वेयर इज दैट माइंडसेट कमिंग फ्रॉम? Where is that mindset coming from? ये अच्छा है डिस्कशन। We should understand कि what is being a guest. Guest doesn't mean I am running away from my responsibilities. No, you are more responsible when you are a guest for everything. Everything. आपका बिहेवियर कैसा है, आप टिप बिल्कुल सच धज के जाते हो, किसी ऐसे थोड़े चले जाते हो जैसे अपने घर में बैठे होते हो। आप केयर रखते हो इसका, कोई मेरे हाथ से कुछ टूट ना जाए, उसके घर में चाय का कप भी होता है टूट ना जाए, इतना केयरफुली रखते हो। अपने घर में तो ऐसे ही ऐसे कर देते हैं, कहाँ से उठाया वहीं पे प्रॉपर रखते हो। कितने डिसिप्लिन्ड होते हो आप, कितने डिसिप्लिन्ड होते हो आप, एंड स्टिल यू एंजॉय। नहीं तो वेयर इज दैट माइंडसेट कमिंग फ्रॉम? जस्ट ब्रेक दिस माइंडसेट, दीज आर ऑल आंट माइंडसेट्स, इन्हीं से निकलना है हमको। सर इसी क्वेश्चन में ना मैं कह रहा हूँ कि मैं, जैसे मेरे मन में आ रहा है कि अगर यही क्वेश्चन मेरे सामने होता तो ये तो बट आई एम थिंकिंग कि मैं उसमें क्या करता कि पहले मेरा माइंडसेट ऐसा था, आर्ट माइंडसेट, कि आई हैव अ माइंडसेट कि दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दैट वाज माय प्रीवियस माइंडसेट। अब क्या है कि नो, एवरीथिंग इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब ये मैं ही ठीक कर देता हूँ अगर वो नहीं कर पा रहा है, बट आई कैन कंट्रीब्यूट। मतलब थोड़ा सा तो माइंडसेट इस तरह से चेंज हो सकता था। अभी तो देखो हमको कुछ एक्सटर्नल लेवल पे करना नहीं है। पहले मैं तो यही रिपीट कर रहा हूँ सबको, चौथी या पांचवी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है कॉन्शियसली, वो नहीं होगा। आपको सिर्फ अपने आप को ट्रुथ पे लेके आना है, रिमाइंड कराना है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। ये जो ये जो होता है ना स्लेव माइंडसेट और ये आंट माइंडसेट, यही होते हैं कि हमें निकलने नहीं देते हैं। हमने वो जो स्टोरी सुनी थी ना कि ईगल था और चिकन्स थे, चिकन्स के साथ रहते रहते हम उड़ना भूल जाते हैं। हम उड़ सकते हैं बट हमने कभी, क्योंकि हम रह चिकन के साथ रहे हैं तो हमें वो उड़ने नहीं देंगे, वो बोलेंगे यू कैन नॉट फ्लाई। तो ये जो चिकन्स हैं ये हमारे ओल्ड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग हैं, ओल्ड माइंडसेट्स हैं जो हमें कभी उड़ने नहीं देंगे। इसी को हिंदी भाषा में माया कहा जाता है, ठीक है। वो एक अलग सब्जेक्ट है, बट दिस इज व्हाट माया इज, कि हमें वो खुश नहीं होने देती। माया का एक ही काम होता है, माया नेवर वांट अस टू बी हैप्पी, ठीक है। मोह माया इसलिए बोला जाता है, नेगेटिव कॉनोटेशन है उसका, बिकॉज उसका काम है, वो हमें फ्री नहीं होना देना चाहती, वो हमें खुश नहीं होना देना चाहती, वो हमें इन्हीं माइंडसेट्स में बांध के रखना चाहती है, इसलिए बना के रखना चाहती है।
राइट। तो अब एक छोटी सी 3 मिनट की हम एक हनी बी की स्टोरी सुनेंगे, देखेंगे भी। इंटरेस्टिंग मुझे तो लगी। मैंने Once upon a time, there was a honeybee who was having a great life in the garden, playing with the gentle breeze, visiting flowers, and collecting honey. One day, the same honeybee found a honey pot. For the bee, this was an extraordinary gift. The entire pot was full of this most refined, sweet honey. "This is all for me," the bee said to itself. The bee was very happy. Some time later, the bee fell into the honey pot and started to drown in the honey. The bee was caught in the honey and had no way of escaping. Its nose and ears were full of honey, and its wings were trapped in the sticky substance. It was all very sweet, but it was suffocating the bee. The immediate need for the honeybee was to come out of the honey pot so that it could breathe and stop suffocating, so that it could use its wings again. When the honeybee was finally free, it enjoyed the sky, and it also was free to take fragrance of the honey. This story is so vivid and accurately explains the human dilemma. We are in a similar situation to the honeybee. This entire physical world is like a honeypot for us. It's an extraordinary gift, but it can also trap us. The entire department of sorrow that ever existed in human beings is only because of being trapped in this honeypot. When an individual sees himself as a guest on this planet, he remains free. As a guest, he remains involved with the world around him, but still remains free. When he loses the spirit of a guest, he begins to claim things, as if getting drawn into the honeypot. The wisest thing that anyone can do is to find the way out of the honeypot. To stop suffocating, to breathe, and to hopefully discover their wings and fly. Anji, what was the message, Nitin ji? वही मोह माया में नहीं फंसना, कोशिश करने का। Don't get trapped into words now. What is the message? What is the message here? इतना ना फंस के रह जाए कि आप अपनी वो असली लाइफ प्रोग्राम का अपनी लाइफ का जो असली टास्क है वो तो जो मजा धीरे 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 अपने डेली रूटीन मतलब अपनी- धीरे धीरे मजा मिलना अलग चीज है। एकदम से आपको सब कुछ मिल जाता है तो उसका जो डेली डेली थोड़ा थोड़ा लेने में मजा है। Should I run again? Play again? अगर मैसेज क्लियर नहीं हुआ तो एवरीवन क्लियर? किसी को डाउट कुछ मैसेज में? क्या मैसेज था? वो सर आप ज्यादा एक्सप्लेन हाँ वही है, वही तो हमें समझना है। हार्ड वर्किंग ना करके हम आराम के ज्यादा मुझे बोल रहा था कि ये ग्रिड में आ गया, ग्रिड में आके कि हाँ ग्रीड में आ गया। ग्रिड में आ गया। Should I run? Play it I again? think sir एक पॉइंट ये भी है कि too much of anything is bad. मतलब उसे थोड़ा बहुत हानि तो चाहिए सस्टेन करने को, लेकिन जब इतना ज्यादा मिल गया कि अब उसे संभल ही नहीं रहा है तो वो भी बेकार है। वहां पे भी
मिल गया ना जहाँ पे उसको चाहिए ही नहीं। सर उसे एफर्ट्स नहीं करने पड़े ज़्यादा हनी के लिए, उसने यही हनी सोचा के था लिए कि नहीं करने मतलब पड़े, लेकिन वहाँ इसी में ही अपना गुजारा कर ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े। ठीक है, ट्रू. So it is about the dependencies only or the attachments that we create in the physical world. है ना, उसको हनी समझ के लेते हैं, बट हनी पॉट या हनी ट्रैप में हो जाते हैं, which then we lose our happiness. है ना, फिर क्योंकि बॉन्डेज क्रिएट हो गया वहाँ पे, we are not able to fly then. And this just about the, it's not about be, है ना, this is more about our mindsets, our dependencies and expectations from the external world. Anna, it could be anything in the external world. We just have to live like a guest. We have to be free finally. Our happiness cannot be dependent on anything. There is no object, no car, no house, no and nothing which claims that yes I can give you happiness. Anna, because this is my, अगर वो एक मैसेज हमने डाला था, उसका भी तो टेक अवे यही था ना, अगर मुझे वो चाहिए, अगर मुझे चाय पीनी है, तो चाय, हैप्पीनेस चाय में नहीं है, वो मेरे माइंड में है, क्योंकि मैं उसको चाहता हूँ पीना, टेस्ट करना चाहता हूँ, दैट इज माई हैप्पीनेस, है ना, मैंने क्रिएट करी है, पर चाय के अंदर तो कोई हैप्पीनेस नहीं है. वो एक सपोज वो मेरे को एक मेरा मन है चाय पीने का, मैंने डिज़ायर क्रिएट करी कि चाय पीने से मुझे खुशी मिलती है सपोज, ठीक है, या कोई डिश और भी हो सकती है, चाय की बात कर लेते हैं ना, मैंने चाय मांगी, चाय आ गई, मुझे खुशी मिल गई, ठीक है, वो बंदे ने इसको एक और बार भर दिया, फिर आपको खुशी मिल रही है, एक और पी लो, मैंने थोड़ा सा और पिया, जितना पी सकते पिया, फिर उसने और डाल दिया, नहीं चाय हैप्पीनेस है तो पियो ना, फिर चाय में अगर हैप्पीनेस है तो पी के खुशी मिलनी चाहिए ना, चाहे वो 10 कप हो चाहे 1 कप हो, पर वो उतने में ही खुशी दे रहा है ना जितना मैंने उस पर, है ना, मैंने डिजायर क्रिएट करी कि मुझे मालूम है कि हाँ इतना ही मेरे को चाहिए. मनी कैन नॉट गिव हैप्पीनेस, कोई भी बड़ी चीज हमें उसमें हैप्पीनेस है ही नहीं तो कहाँ से देगी, वो तो एक ऑब्जेक्ट है, वो तो एक फिजिकल वर्ल्ड का एक मतलब एलिमेंट्स हैं, उसकी शेप वैसे दी हुई है, बॉडी भी वही उसी का हिस्सा है जो हमें मिली हुई है 5 एलिमेंट्स से. 5 एलिमेंट्स आर नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस, वो तो हम विश क्रिएट करते हैं, वो फुलफिल होती है तो हमें हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि कप चाय का कप लेना आसान है, मेरे कंट्रोल में है, वो भी ना मिले तो लूज कर देते हैं हैप्पीनेस. मेरे खुद इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि भाई चाय मिलेगी हैप्पी, जिस दिन वो छुट्टी पे चले गया, वो कप रख के नहीं गया तो अंदर से वो होने लगता है कुछ ना कुछ कि भाई चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, उस समय तक तो खुशी नहीं आती, फिर जब तक दोबारा से वो फोन करके उससे चाय ना मंगा लो, ऐसे ही होता है ना. So we have become dependent on chai, cup of tea also. I am the slave of this cup now. तो मुझे अब मेरे पास अब ऑप्शन है ना कि मैं चाय पे अपनी डिपेंडेंसी रखूं खुशी के लिए, या मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं. दिस कप ऑफ टी कैन बी एनीथिंग इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो दिस इज माई चॉइस ना, है ना. तो दिस इज द मैसेज कि जितना आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, आप फाइनली हैप्पीनेस इज व्हाट वी ऑल आर सीकिंग ना. हमें मनी इकट्ठा करके हैप्पीनेस तो नहीं मिल रही, सीधी सी बात है ना, कोई मनी आपको हैप्पीनेस नहीं दे रही है. यू कैन बाय अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम विद मनी, है ना, वो भी एक लिमिट के बाद आपको परेशान करता है. आपका बहुत बड़ा, मैं एक ऐसी क्लिप सा देख रहा था कि उसमें यही मैसेज आ रहा था कि आप बहुत बड़ा घर अगर सपोज आप बना भी लो, ठीक है, वो एक टाइम के बाद ना वो उल्टा होने लगता है, क्योंकि जब आप 60-70 में पहुंचते हो ना, फिर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते, आप वो घर में सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ पाते हो, फिर आपको छोटा घर अच्छा लगने लगता है, ठीक है. इसी तरह से इतना सारा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया, वो समझ में नहीं आता कि वो उसको करें क्या, फिर दान देना शुरू करते हैं, क्योंकि वो देने में खुशी है ना. तो उतना ही मेरे हिसाब से मैसेज भी इतना ही था कि, है ना, जिसमें खुशी मिल रही है, फाइनल थिंग दैट मैटर्स इज हैप्पीनेस.
बट हम उस एक साइकिल में फंस जाते हैं, है ना, कि वी ट्राई टू होल्ड एवरीथिंग बिकॉज वी सी पीपल कि हाँ वो हैप्पीनेस मेरी नहीं है, वो मेरे अंदर एक डिज़ायर पैदा करती है जब मैं दूसरों को देखता हूँ कि उसके पास ये है, उनको भी नहीं मिल रही, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो सब इसी रेस में रह गए हुए हैं। रैट रेस जो हमने फर्स्ट टाइम दिन देखी थी, रैट रेस यही तो थी ना, क्या थी रैट रेस? वी आर ऑल इन दैट रेस, रैट रेस। मेरे को तो जो है, मेरे पास सब कुछ है, बट उसके पास यार मेरे से बड़ी गाड़ी क्यों है, मेरे पास उससे बड़ा घर क्यों है, या मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, मेरे पास आईफोन क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि दूसरे के पास है और मेरी खुशी अब उससे जा रही है कि उसके पास कैसे है। मेरी सैलरी, मेरी उसकी मेरी मुझसे ज़्यादा सैलरी कैसे होगी, उसकी मेरे से ज़्यादा पोस्ट अच्छी कैसे हो गई, अब तो मेरी हैप्पीनेस उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, मैं तो उसका स्लेव हो गया, अब मुझे भी चाहिए, और जिस दिन मिल जाएगी तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊंगा, फिर मैं दूसरी रेस में दौड़ पड़ूंगा। फिर सब मोटिवेशन कहाँ जाएगा? मोटिवेशन किस चीज़ के लिए चाहिए आपको? कुछ भी एक्सटर्नल हैप्पीनेस के लिए। वाई यू कैनॉट बी ए गेस्ट, वाई यू कैनॉट बी एन ईगल, कि आप सब कुछ करेंगे एंड आप जो भी करेंगे वो आप अपना 100 के 200% होगा, बिकॉज यू विल बी इंजॉइंग दैट। आपको कोई ये नहीं बोल रहा है कि आपने अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाना है। ये भी एक आंट कॉन्शियसनेस है कि मेरे को मोटिवेशन कहाँ से आएगा, बिकॉज मैंने मोटिवेशन ही बना ली है उसको। Who can stop you if you are at higher consciousness, if you are very efficient, है ना, if you can handle all the situations in your life, है ना, who can stop your progress or your success? आपको वो सक्सेस आपके पीछे दौड़ेगी। सबको चाहिए ऐसे लीडर्स ना, घर में भी ऐसे ही लोग चाहिए ना, जो हेल्प कर, जो सपोर्ट कर पाए। ऐसी तो लोग चाहिए जब जिसकी जरूरत हो वो सपोर्ट कर पाए हमें, है ना। और कंपनीज को भी ऐसी तो लोग चाहिए जो कि मतलब कुछ भी जितना प्रेशर हो वो अपना 100% दे सके। एक प्रेशर आता है प्रोजेक्ट करके हफ्ते की छुट्टी चले जाते हैं लोग, वो अब हमें थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है, बहुत काम कर लिया, है ना, थोड़ा सा और हो गया प्रेशर तो वो काम छोड़ देते हैं, है ना। तो मोटिवेशन, वो मोटिवेशन नहीं है एक्चुअली, वो तो हमें मजबूरी हो जाती है फिर, क्योंकि वहां हमने कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रखी हुई है। वो मोटिवेशन भी कहाँ से आ रहा है, अगर आपको उसको रूट कॉज पे जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन नॉट कि मेरे को अपनी हैप्पीनेस के लिए, बिकॉज आई हैव टू देन कंपेयर, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं उसके जैसा ही मेरे पास हो। सारा करप्शन का एक ही रूट कॉज है, कंपेरिजन। मेरे पड़ोसी के पास ये है, या मेरे रिलेटिव के पास ये है, या मेरे फ्रेंड के पास ये है, अब मुझे उसको मैच करना है, ठीक है। अब मैं जैसे भी कमाऊं अब मैं जैसे भी कमाऊं, फिर करप्शन यहीं से पैदा होता है, और स्ट्रेस भी यहीं से पैदा होता है। वो प्रेशर बन गया कि मैं लूज ना कर जाऊं, मैं हो सकता है मैं वो अचीव ही ना कर पाऊं। अब फियर वो है कि मैं वो कैसे, वो मेरा अचीव नहीं हुआ तो मैं कैसे अपने आप को कैसे जस्टिफाई करूंगा। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अब उस पर टिक गई है, मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उस पर टिका लेता हूँ, क्योंकि सेल्फ एस्टीम तो लूज कर दिया। अब वही है, सेल्फ रिस्पेक्ट उस पर टिक गया कि मेरी पोजीशन क्या होगी, क्या मैं उनके साथ जाके खड़ा हो सकता हूँ, क्या मैं भी अपनी गाड़ी उनको दिखा सकता हूँ, या जो भी वट एवर फॉर दैट इज, है ना, जो बाय करने की कोशिश हम कर रहे हैं बाहर। सो दैट इज डिपेंडेंसी। एनीवेज द टाइम हमारा ओवर हो गया है, so we'll continue tomorrow. We will continue this topic only tomorrow. Meanwhile, 2 minutes of practice, don't forget this. This will change our consciousness, right? So laws of physical world and guest consciousness. Yeah, abhi to filhal this is what need to do. And वो जो scale, उसकी रेटिंग। So any comments online, people? Sir, I think we're fine. Thank you, sir. Any questions? Okay. Next, no questions. Okay, thank you so much.